Assalamu alaikum everyone, hope you're doing well. So this is unit number 6, international aspects, and chapter number 25, topic number 2, international trade. And in this video I'll explain you two important international trade theories. One is called absolute advantage theory and the other one is called comparative advantage theory. So let's begin the video. So starting with the first theory, that is absolute advantage theory, and absolute advantage theory was basically presented by Adam Smith, who was the founder of economics as well. Absolute advantage theory, and as per the Adam Smith, countries, he suggested basically to the countries to specialize in the product in which they have absolute advantage, and absolute advantage mean clear-cut advantage. Right, so every country has like different factor endowment, different factors of production they have, and they have different kind of other resources like land, labor, capital, and all the resources are not equally distributed and divided among the world. So one country may be more efficient, absolutely more efficient than the other country, so it should specialize in the production of that good, or दूसरा जो country है that should specialize in the production of good that country has an advantage, absolute or clear cut advantage. देखिए हर किसी को हर चीज़ में advantage नहीं होता. किसी country को maybe एक product में, जैसे कुछ countries हैं जो agricultural based countries होती हैं, जो industrial based countries होती हैं, so all of them have different like factor endowment, and they have different situations and different factors of production and different efficiency of those factors of production. So इस theory को explain करने के लिए या further understand करने के लिए it is really important to consider a table and a diagram. For example, we have countries and we have two products. Let's say we have wheat and then we have sugar, and I'm considering two countries. One is Pakistan and the other country is, let's say, USA. So Pakistan can produce 20 units of wheat and USA can produce 10 units of wheat, while Pakistan can produce 100 units of sugar and USA can produce 150 units of sugar. So in this way the total production of sugar is 250, like 100 plus 150 is equal to 250, and total production of wheat is 20 plus 10 is equal to 30. Okay, so this is like we are considering there are only two countries in the world and they want to specialize as per their absolute advantage. So in this table you can clearly see that Pakistan has clear-cut advantage in the production of wheat, because if we first of all we look at wheat, then Pakistan can produce more wheat than the USA, and if we look at the sugar, USA can produce more sugar than Pakistan. So from this table we are 100% clear that Pakistan has absolute advantage in the production of wheat and USA has absolute advantage in the production of sugar. So they should specialize accordingly. जब पाकिस्तान wheat में specialize कर लेगा और USA sugar में specialize कर लेगा, तो फिर they will be able to like enjoy greater quantity of wheat and sugar by trading with each other and specializing in respective goods. Okay, so now we can draw a diagram showing different combinations of production possibilities of Pakistan and the USA. For example, this is production possibility curve of Pakistan, where Pakistan can produce 100 units of wheat, rather 20 units of wheat. So this is 20. On Y we have, let's say, wheat, and this is origin point. On X we have sugar. So Pakistan can produce 100 units of sugar and 20 units of wheat. On the other hand, जब हम दूसरा USA की diagram बनाएंगे तो that diagram will look like this, क्योंकि USA जो है, USA can produce more sugar than wheat. So USA की जो production possibility wheat की है, that is 10 units, ये वाले, and 150 units of sugar. So ये values मैंने plot कर दी. So this blue line is for the USA and the red one is for
पाकिस्तान। सो अगर आपको एग्जामिनर लेट्स से कि डायग्राम बना के दे दे तो इस तरह से डायग्राम बनी होगी। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टेबल एज वेल, अगर टेबल हो तो डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये क्लियरली पता चल गया कि पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन व्हीट एंड यूएसए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन शुगर। अगर ये अपने सारे रिसोर्सेज उस चीज़ में एलोकेट कर दें जिसमें इनको एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो ज़ाहिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी और कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ या ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ होता है कि मैक्सिमम पे कितने यूनिट्स ये कंज्यूम कर सकेंगे। लेट्स से अगर पाकिस्तान वीट में स्पेशलाइज कर ले, यूएसए शुगर में स्पेशलाइज कर ले, तो इनकी जो लाइक कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ होंगी या ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो इन मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस तक चली जाएंगी। सो इनका जो लाइक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व होगा दैट विल बी लाइक दिस। ये जो लाइक ग्रीन लाइन है दिस इज़ ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। लाइक इतनी गुड्स ये पे ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर व्हेन दे डिसाइड टू स्पेशलाइज देन व्हाट विल बी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। सो अब अगेन इसी टेबल को फिर से मैं कन्वर्ट करूँगा एक और टेबल के अंदर। लेट्स से कि अब हमारे पास एक और टेबल हम बना लेते हैं जो कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन की सिचुएशन को शो करेगा। सो दिस वाज द सिचुएशन बिफोर स्पेशलाइजेशन एंड दिस इज़ द सिचुएशन आफ्टर स्पेशलाइजेशन। देखिए जहन में रखें कि अगर पाकिस्तान वीट में स्पेशलाइज कर लेगा, वीट, और यहाँ पे मैं शुगर लिख रहा हूँ और यहाँ पे वही अगेन आई विल कॉपी द सेम टेबल लाइक पाकिस्तान एंड देन दिस इज़ यूएसए। पाकिस्तान जब स्पेशलाइज कर लेगा वीट में तो इसकी वीट की प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। पहले 20 थी, अब क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, लेकिन ये शुगर बनाना छोड़ देगा। सो शुगर की प्रोडक्शन विल बी नाउ 0 एंड ऑन द अदर हैंड यूएसए विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग वीट एंड इट विल फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सो शुगर की प्रोडक्शन पहले 150 थी, अब इसकी शुगर की प्रोडक्शन 300 हो जाएगी, लेकिन इट विल स्टॉप लाइक प्रोड्यूसिंग वीट नाउ। अब ऐसा क्यों है, इसको डबल क्यों कर दिया, 20 से 40 डबल क्यों कर दिया और 150 से 300 डबल क्यों कर दिया? देखें इसकी एक ख़ास रीज़न है कि जब हम लाइक इन थेरीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वी अज्यूम दैट देयर आर 2 countries in the world like Pakistan and USA and there are only 2 products that we are considering in this theory, or before specialization 50% resources are allocated on each product. लाइक अगर पाकिस्तान 50% रिसोर्सेज के साथ वीट 20 यूनिट्स बना सकता था तो 100% रिसोर्सेज के साथ इसकी वीट की प्रोडक्शन हमारे पास 40 हो जाएगी। एंड यूएसए को एग्जांपल ले लें तो यूएसए की शुगर की प्रोडक्शन 50% रिसोर्सेज के साथ 150 थी, जब 100% रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी लाइक उसमें 100% इंक्रीज़ आ जाएगा, लाइक 150 से 300 डबल हो जाएगी। दिस वॉज एब्सोल्यूट एडवांटेज थेरी जो कि काफ़ी लाइक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन थी। नाउ मूविंग टू द कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होती है बच्चों को। कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी सो ये जो थेरी है डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया था इसको, और उसने ये बोला था कि कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in which they have comparative advantage। मीन हो सकता है कि एक कंट्री दोनों चीज़ें ज़्यादा बना सकता हो, दूसरा कंट्री दोनों चीज़ें कम बना सकता हो। तो फिर हम देखते हैं कि अगर एक कंट्री दोनों चीज़ें ज़्यादा बना सकते हैं तो फिर रिलेटिवली ज़्यादा एडवांटेज किस में है। देखें जैसे सपोज़ करें कि एक टाइपिस्ट है और वही लेक्चरर भी है, और वो एक लेक्चर देने के लेट्स से ही अर्न्स ₹5000 पर लेक्चर, लेकिन अगर वही 1 आवर से वो 5000 रुपीज़ अर्न करते हैं by giving lectures in university, then at the same time if he spends the same 1 hour for typing, let's say he can earn 1000 rupees per hour. So अब आप देख सकते हैं कि बेशक he might be better than another person in typing as well as in like delivering lecture. तो दोनों केसेस में इसकी हो सकता है कि अर्निंग किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा हो एब्सोल्युटली, लेकिन हम देखेंगे रिलेटिवली इसको ज़्यादा फ़ायदा किस में, मे बी इसमें ज़्यादा रिलेटिव फ़ायदा है या इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो स्पेशलाइज़ कर लेगा, और जब स्पेशलाइज़ कर लेगा तो डेफिनेटली ही कैन अर्न मोर
और इसी तरह कंट्रीज़ का भी यही सीन है कि हम देखते हैं कि रिलेटिवली किस में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखते हैं कि जिस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, किसी भी काम को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, लाइक आपको लूज़ कम करना पड़ता है, सेक्रीफाइस कम करना पड़ता है और आपको गेन ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ में आप स्पेशलाइज कर लेते हैं। लेट्स से हम वही सेम एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को मैं चेंज कर दूंगा। लेट्स से हमारे पास वही पाकिस्तान है एंड देन वी हैव यूएसए। पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस लेट्स से 20 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड यूएसए कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट। और इसी तरह से पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस 200 यूनिट्स ऑफ शुगर एंड इट कैन प्रोड्यूस लेट्स से 150 यूनिट्स ऑफ शुगर। अब पाकिस्तान 200 यूनिट्स बना सकते हैं, यूएसए 150 यूनिट्स बना सकते हैं। अगेन अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो डायग्राम जो होगी दैट विल लुक लाइक दिस। इसकी जो डायग्राम होगी लेट्स से 20 एंड 200 एंड देन 100 एंड 150। ओके, सो अब इसमें ये हमारे पास 200 है। द फर्स्ट डायग्राम इज़ फॉर पाकिस्तान 220 और वाई पे हमारे पास है वीट एंड एक्स पे हमारे पास है शुगर। और दूसरी जो लाइन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे और यहाँ पे 10 ये यूएसए के लिए मैंने प्लॉट किया। तो दिस बेसिकली पीपीसी इज़ फॉर यूएसए, द फर्स्ट पीपीसी वाज फॉर पाकिस्तान। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं थोड़ी सी मिसलीडिंग होती हैं। पाकिस्तान अगर देखें हम वीट में देखें तो वीट में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है? सो पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट बिकॉज पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स ऑफ वीट वाइल यूएसए कैन प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ वीट। अगर शुगर देखें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज पाकिस्तान को किस चीज़ में था? वीट में था। यहाँ पे आके देखते हैं क्या हुआ। अब अगर देखें तो पाकिस्तान अगेन कैन प्रोड्यूस मोर शुगर दैन यूएसए, तो पाकिस्तान को एब्सोल्यूट एडवांटेज शुगर में भी है। अब अगर पाकिस्तान को दोनों चीज़ों में एडवांटेज है, मीन यूएसए को दोनों चीज़ों में डिसएडवांटेज है, तो पाकिस्तान को हम ये देखेंगे कि ज़्यादा एडवांटेज किस में, जिस चीज़ में ज़्यादा एडवांटेज होगा उसमें हम स्पेशलाइज कर लेंगे, या जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कम होती है वहाँ पे आप उस चीज़ में स्पेशलाइज कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। लाइक अगर वीट बनाने के लिए कितना शुगर छोड़ना पड़ेगा, अगर ज़्यादा शुगर छोड़ना पड़ेगा तो फिर आप वीट को सेक्रीफाइस कर देंगे क्योंकि वीट में स्पेशलाइज करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अगर 1 वीट के लिए लेस शुगर छोड़ना पड़ रहा है तो फिर आपके लिए कोई ट्रबल की बात नहीं है। यू कैन स्टॉप प्रोड्यूसिंग वीट एंड यू कैन फोकस ऑन शुगर। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल फर्दर समझाता हूँ, लेकिन बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि बिफोर स्पेशलाइजेशन द सिचुएशन वाज लाइक दिस, जो इस टेबल में शो हो रही है। लेकिन आफ्टर स्पेशलाइजेशन जब हमें पता चल गया कि पाकिस्तान को किस चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो पाकिस्तान उस चीज़ में स्पेशलाइज कर लेगा। सो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ में पाकिस्तान को कंपैरेटिव एडवांटेज है? एब्सोल्यूट एडवांटेज तो पाकिस्तान को दोनों चीज़ों में, लेकिन स्पेशलाइज करने का मतलब है आप दोनों चीज़ें नहीं बनाते, आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं। सो फिर किस चीज़ पे फोकस करेंगे? देखें, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का वीट में देखें तो पाकिस्तान वीट 100% ज़्यादा बना सकता है यूएसए की निस्बत, क्योंकि डबल वीट बना रहे हैं। डबल वीट का मतलब है 100% ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन शुगर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लाइक अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मे बी ये शायद 20-25% एक्स्ट्रा शुगर बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए। बट पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस 100% मोर वीट दैन द यूएसए। सो इसका मतलब है पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ बट कंपैरेटिव एडवांटेज इन वीट। अब एक चीज़ और भी क्लियर है कि अगर किसी एक कंट्री का आपको पता चले कि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में, तो दूसरी कंट्री का डेफिनेटली फिर दूसरी चीज़ में होता है। यूएसए को दोनों चीज़ों में लॉस है, लेकिन इसमें अगर करता तो 100% लॉस होता, इसमें थोड़ा सा लॉस है, उतना ज़्यादा लॉस नहीं है। ओके, सो परसेंटेज आप अगर निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें लाइक शुगर में लॉस कम है, वीट में लॉस ज़्यादा है। सो आफ्टर स्पेशलाइजेशन अगेन आपको उसी तरह से फिर से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और उस टेबल में वापस हम उसी तरह से वैल्यूज़ ले लेंगे, लाइक कंट्रीज़ लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रीज़, एंड कंट्रीज़ इंक्लूड लाइक पाकिस्तान एंड द यूएसए, and there are two products like wheat and sugar
और अब जब पाकिस्तान स्पेशलाइज करेगा वीट में तो इसकी प्रोडक्शन 40 हो जाएगी और 20 से डबल होकर 40 हो जाएगी, लेकिन ये शुगर बनाना छोड़ देगा, ज़ीरो कर देगा। और यूएसए जो है दैट विल स्पेशलाइज इन शुगर एंड इट्स प्रोडक्शन विल बी डबल फ्रॉम 150 to 300 और ये वीट बनाना छोड़ देगा। सो दिस इज़ हाउ दे कैन बेसिकली स्पेशलाइज। और फिर क्या होगा कि पाकिस्तान विल इम्पोर्ट शुगर फ्रॉम यूएसए एंड यूएसए विल सेल विल बाय लाइक वीट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरह लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से फिर पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान विल एक्सपोर्ट वीट, लाइक इट विल एक्सपोर्ट वीट एंड यूएसए क्या करेगा, यूएसए विल एक्सपोर्ट शुगर। ठीक है, ज़ाहिर इम्पोर्ट फिर ऑपोजिट हो जाएगी। पाकिस्तान अगर वीट एक्सपोर्ट करे मीन के पाकिस्तान इज एक्सपोर्टर ऑफ वीट एंड इम्पोर्टर ऑफ शुगर, और यूएसए जो है दैट विल बी द एक्सपोर्टर ऑफ शुगर एंड इम्पोर्टर ऑफ वीट। ठीक है, सो ये मैंने एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया, यूएसए एक्सपोर्ट्स शुगर एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स वीट। So this is how countries can benefit from international resources and they can trade with each other. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं आपको समझाऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से लाइक हम फाइंड करते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस पे कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री को किस चीज़ में कंपैरेटिव एडवांटेज है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन वही एग्जैक्टली सेम टेबल को मैं वापस लिख लेता हूँ। कंट्रीज़ हैं हमारे पास और देन प्रोडक्ट्स हैं, वीट एंड शुगर, दो प्रोडक्ट्स में ले रहा हूँ। और यहाँ पे लाइक हमारे पास पाकिस्तान है एंड देन वी हैव यूएसए। पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस 20 एंड 200 और 10 एंड 150। सो ये हमारे पास लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद लाइक हम मूव करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने कहा था मैं समझाऊंगा। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो वीट और शुगर को जब हम कंपेयर करेंगे लाइक वीट 20 है, यहाँ पे वीट लिख देता हूँ, और शुगर 200 है, एस लिख देता हूँ शुगर के लिए। तो इसको लाइक अगर हम मैथमेटिकली थोड़ा सा फर्दर प्रिसाइज करें तो ये जो एक ज़ीरो है ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 1s 2 कर दें एंड 2 10s 20। ठीक है, सो या 20 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1:10 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो ये हमें क्या शो कर है, ये हमें ये शो कर है कि पाकिस्तान एक वीट के अगेंस्ट 10 शुगर उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं इसकी तरफ, तो इसकी जो रेशो है 10:150। सो इसको भी लाइक फर्दर प्रिसाइज करेंगे तो 10/10 कर दें, 150/10 कर दें, तो 10/10 1 हो जाएगा। 1 वीट इज़ इक्वल टू 15 शुगर। यूएसए को एक वीट के यूनिट के लिए 15 यूनिट शुगर के सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। सो पाकिस्तान को एक वीट के अगेंस्ट कम शुगर सेक्रीफाइस करना पड़ती है तो उससे शुगर को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यूएसए को एक शुगर के अगेंस्ट एक वीट के अगेंस्ट 15 यूनिट्स ऑफ शुगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं। सो यूएसए को शुगर छोड़ने में ज़्यादा नुकसान होगा, शुगर प्रोड्यूस ना करे तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। सो इट्स बेटर फॉर द यूएसए टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड स्टॉप प्रोड्यूसिंग वीट। और पाकिस्तान जो है दैट हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड इट कैन स्टॉप प्रोड्यूसिंग शुगर। एक छोटी सी और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। जब ये ये थेरीज बेसिकली बेस करती हैं ऑन द आइडिया ऑफ बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड होता है ट्रेड ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। ठीक है, पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। पाकिस्तान वीट एक्सपोर्ट करके शुगर इंपोर्ट करवा लेगा, वीट के अगेंस्ट शुगर लेगा और यूएसए शुगर दे के वीट बाय करेगा। अगरचे आजकल इस तरह काफ़ी हमें नज़र नहीं आता कि कोई कंट्रीज़ इस तरह करती हूँ। समहाउ माइक्रो लेवल पे थोड़ी सी इस तरह के इश्यूज हमें नज़र आते हैं कि लोग आपस में अपनी गुड्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं है। ओके, सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सचेंज रेट फिक्स करना चाहते हैं कि 1 वीट जो है कितने शुगर के इक्वल होना चाहिए। सो वीट रेशो शुगर। अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल हैं तो इनकी जो रेशो बनी थी, दिस इज़ पाकिस्तान, इनकी रेशो जो थी दैट वाज 1:10, राइट। सो ये वाली रेशो मैंने पिक की और इसको इधर लिख दिया। यूएसए की क्या रेशो बनी थी,
1 wheat equals to 15 शुगर, ये वाली रेशियो मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब इन्होंने आपस में ट्रेड करना है। अब ये फिक्स करेंगे कि 1 वीट के अगेंस्ट कितने शुगर जो है वो लाइक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने चाहिए। इसके लिए बेसिक रूल होता है, ये तो ऑलरेडी 1 है दोनों केसेस में, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बेसिकली कंसीडर दीज वैल्यूज़। अब जब एक्सचेंज रेट फिक्स करना है तो एक्सचेंज रेट 10 और 15 के दरमियान में कहीं सेट होगा। 10 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 15 से ऊपर भी नहीं जा सकता, 10 से नीचे भी नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में होगा। लेट्स से कि पाकिस्तान अगर शुगर के 10 यूनिट्स खुद बना रहे और यूएसए उसे ऑफ़र करता है कि यूएसए उसको 10 यूनिट्स प्रोवाइड करेगा, तो पाकिस्तान कहेगा कि हम 10 यूनिट्स तो खुद बना रहे हैं, फिर हमें इंटरनेशनल ट्रेड की झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है, तो हम ट्रेड नहीं करते। तो यूएसए को 10 से ज़्यादा ऑफ़र करने पड़ेंगे शुगर के यूनिट्स। लेकिन अगर पाकिस्तान डिमांड करे कि मुझे 15 यूनिट्स दे दें, 1 वीट के अगेंस्ट 15 यूनिट्स शुगर के दे दें, तो यूएसए कहेगा कि हम सारा बनाते ही 15 यूनिट्स हैं, तो टोटल सारे के सारे तो हम आपको नहीं दे सकते। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली दे विल फिक्स द एक्सचेंज रेट। यूएसए 15 से ऊपर नहीं देगा, पाकिस्तान 10 से नीचे एक्सेप्ट नहीं करेगा, 10 से ऊपर, 10 और 15 भी नहीं हो सकता, 10 से ऊपर और 15 से नीचे होना चाहिए शुगर का वेट। लाइक 1 वीट शुड बी इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ शुगर बिटवीन 10 एंड 15। लेट्स से 12 हो जाए, 12 यूनिट्स ऑफ शुगर, तो दोनों में ट्रेड पॉसिबल हो जाएगा। और लेकिन 11 भी हो सकता था, 1 वीट, ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 वीट इक्वल टू 11 शुगर, क्योंकि 10 से ऊपर चला गया, 15 से नीचे है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 वीट इक्वल टू लाइक 13 यूनिट्स ऑफ शुगर, ये भी हो सकता था, क्योंकि अगेन ये लिमिट्स के अंदर है। 1 वीट इक्वल टू 14 यूनिट्स ऑफ शुगर, ये भी हो सकता था। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इनके ट्रेड को पॉसिबल कर देंगे। लाइक अगर 10 से एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा तो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा, 15 या 15 से ऊपर जाएगा तो यूएसए एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन पाकिस्तान जो है 10 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 से ऊपर और 15 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड। ये वाली चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, अगर आपको इसमें समझने में थोड़ी ट्रबल हो रही हो तो आप कमेंट्स में लिख दें, आई विल ट्राई टू मेक इट फर्दर क्लियर। अगर आपको समझ नहीं है, आप एक दफ़ा दोबारा से इसको सुन लें, सो आई बिलीव यू विल बी क्लियर ऑन दैट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और बाकी की जो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 पे हम मूव करेंगे, और अगेन उसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह चल रहा हूँगा। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड, और ये आपके लिए एक तरह का क्रैश कोर्स भी है, आपको डेली बेसिस पे एक न्यू वीडियो और एक कॉन्सेप्ट्स की चेन के साथ मिल रही है। लाइक ये नहीं है कि मैं जंप्स लगा रहा हूँ बीच में से, सो सीक्वेंस से जा रहा हूँ। सो यूनिट नंबर 6 जो है आज की क्लास के साथ ये एंड हो जाता है, और यूनिट नंबर 6 जो है उसमें चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28, 29 ये 5 चैप्टर्स थे। 5 चैप्टर्स मैंने इस यूनिट में एक्सप्लेन कर दिए। सो आई विल ट्राई कि मैं सारी वीडियोस को मर्ज करके यूनिट 6 की एक ही वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह से ज़रूरत हो तो मैं वो भी आप लोगों के लिए कर दूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास, एंड in the next lesson I'll move to unit number 5. So see you in the next lesson inshallah. Allah Hafiz. और दूसरा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, I have basically compiled different books for AS, A2 economics and O levels economics as well. तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, तो you can basically go there and try to order online. Okay, so see you in the next video inshallah. Allah Hafiz.